ہمارے مزیدار کہانیاں دیکھنے کے لیے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور نیکسٹ کہانی کا انتظار کیجئے۔ بہت زمانے پہلے کی بات ہے، مشرق کی ایک عظیم و شان سرزمین پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام سلطان شہریار تھا۔ اس کی سلطنت کی حدیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں اور اس کے طاقت و اقتدار کا سکہ ہر طرف چلتا تھا۔ اللہ نے اسے وہ سب کچھ عطا کیا تھا جس کی ایک انسان تمنا کر سکتا ہے۔ بے بہا خزانے، عالی شان محل، ہزاروں سپاہی جو اس کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے، اور رعایا جو اس کی انصاف پسندی کے قصے سناتے نہیں تھکتی تھی۔ مگر انسان کی فطرت بڑی کمزور ہوتی ہے، کیونکہ جب اسے بنا مانگے اور بنا محنت کے بے حساب نعمتیں ملنے لگتی ہیں تو وہ دینے والے مالک کو بھول کر خود کو ہی ان چیزوں کا حقدار سمجھنے لگتا ہے۔ اور یہی حال سلطان شہریار کا بھی ہو چکا تھا۔ وہ اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں اس قدر چور تھا کہ اسے لگتا تھا کہ یہ تخت و تاج، یہ عزت اور شہرت سب اس کی اپنی عقل مندی اور بہادری کا نتیجہ ہے۔ وہ اکثر اپنے محل کے سب سے اونچے برج پر کھڑا ہو کر اپنے پھیلے ہوئے شہر کو دیکھتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ اگر میں نہ ہوتا تو یہ رعایا بھوکی مر جاتی اور یہ نظام بکھر جاتا۔ گویا اس کے دل میں اللہ کی نعمتوں کا شکر تو زبان پر ہوتا تھا، مگر احساس مر چکا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سلطان نے اپنی سلطنت میں جشن کا اعلان کیا کیونکہ اس کی فوج نے ایک نئی اور بڑی فتح حاصل کی تھی۔ شاہی محل کو دلہن کی طرح سجایا گیا اور ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ خوشبوؤں سے محل مہک رہا تھا اور طرح طرح کے لذیذ پکوان تیار کیے گئے تھے۔ دربار عام لگا ہوا تھا جہاں بڑے بڑے وزیر، امیر و کبیر اور دوسرے ملکوں کے سفیر موجود تھے جو بادشاہ کی شان میں قصیدے پڑھ رہے تھے۔ سلطان اپنے سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا بڑا ہی پروقار لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور لہجے میں تکبر تھا۔ جب کھانا شروع ہوا تو نوکر سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا لے کر آئے۔ سلطان نے ایک نوالا اٹھایا ہی تھا کہ اچانک دربار کے دروازے پر ایک شور اٹھا۔ پہرے داروں نے کسی کو روکنے کی کوشش کی، مگر ایک بوڑھا کمزور سا شخص جس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور چہرے پر زمانے کی گرد جمی تھی، وہ بے خوف دربار کے بیچوں بیچ چلا آیا۔ پہرے دار اسے پکڑنے ہی والے تھے کہ بادشاہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا، کیونکہ اس بوڑھے کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جس نے سلطان کو حیران کر دیا تھا۔ وہ فقیر سیدھا چلتا ہوا تخت کے قریب آیا اور بنا کسی خوف کے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اے شہریار، کیا یہ جو نوالا تیرے ہاتھ میں ہے تو واقعی اس کا مالک ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ وزیر اور درباری گھبرا گئے کہ اس گستاخ فقیر کی اب گردن اڑا دی جائے گی، مگر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، اے بزرگ، لگتا ہے تمہارا ذہن بھوک سے کمزور ہو گیا ہے۔ یہ سلطنت میری ہے، یہ خزانہ میرا ہے اور یہ نوالا بھی میرا ہی ہے جسے میں جب چاہوں کھا سکتا ہوں۔ فقیر نے ایک گہری سانس لی اور کہا، مت بھول کہ تجھ سے پہلے بھی اس تخت پر کئی لوگ بیٹھے تھے جو یہی سمجھتے تھے کہ وہ مالک ہیں، مگر آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ میں تجھ سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر تجھے شدید پیاس لگی ہو اور پوری دنیا میں پانی کا ایک قطرہ نہ ملے سوائے ایک پیالے کے جو میرے پاس ہو، تو اس ایک پیالے پانی کے بدلے مجھے کیا دے گا؟ بادشاہ نے سوچا کہ یہ کیسا پاگل پن بھرا سوال ہے، مگر اس نے مذاق کے انداز میں جواب دیا، اگر میری جان پر بن آئے اور پیاس سے دم نکل رہا ہو تو میں اس ایک پیالے کے لیے اپنی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ فقیر نے پھر پوچھا، اور اگر وہ پانی پینے کے بعد تیرے جسم سے باہر نہ نکلے اور تو تکلیف سے مرنے لگے تو اس علاج کے لیے تو کیا دے گا؟ بادشاہ اب تھوڑا سنجیدہ ہوا اور بولا، تو میں اپنی باقی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا تاکہ میری جان بچ سکے۔ یہ سن کر وہ فقیر زور سے ہنسا اور بولا، تو پھر اے نادان بادشاہ، جس سلطنت کی قیمت صرف ایک پیالہ پانی ہے اس پر اتنا غرور کیسا؟ تو جس تخت پر بیٹھا ہے وہ در حقیقت اللہ کی وہ نعمت ہے جو تجھے امتحان کے لیے دی گئی ہے، مگر تو اسے اپنی جاگیر سمجھ بیٹھا ہے۔ یاد رکھ، نعمت کا حقدار وہ نہیں جو اسے پا کر خوش ہو، بلکہ وہ ہے جو دینے والے کو پہچان کر سر جھکا دے۔ اتنا کہہ کر وہ فقیر وہاں سے پلٹا اور بھرے دربار سے نکل گیا۔ سلطان کے ہاتھ میں وہ نوالا ویسا کا ویسا ہی رہ گیا۔ اس کے کانوں میں فقیر کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ظاہری طور پر تو جشن چلتا رہا، مگر سلطان کے اندر کا سکون
जो दौलत और ताकत के सहारे टिका हुआ था, वह उस एक पल में हिल गया था। उस रात जब सुल्तान अपने नरम बिस्तर पर लेटा तो उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार ख्याल आ रहा था कि क्या वाकई वह सिर्फ एक जिम्मेदार है या मालिक? क्या वाकई उसकी पूरी सल्तनत की औकात एक प्याले पानी से ज्यादा नहीं? उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी, वह बेचैनी जो इंसान को गफलत की नींद से जगाने के लिए जरूरी होती है। उसने करवट बदली और फैसला किया कि वह कल सुबह भेस बदलकर अपनी रियाया का हाल देखने निकलेगा, ताकि जान सके कि हकीकत क्या है और क्या वह वाकई अल्लाह की नेमतों का हक अदा कर रहा है या सिर्फ धोखे में जी रहा है। यही वह फैसला था जिसने उसकी जिंदगी का रुख मोड़ने की बुनियाद रखी। और अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही सुल्तान अपने महल के पिछले दरवाजे से एक आम मुसाफिर के लिबास में निकल पड़ा, अनजान राहों की तरफ, जहां किस्मत उसका एक नया इम्तिहान लेने के लिए तैयार खड़ी थी। सुल्तान शहरयार ने शाही लिबास उतारकर मामूली कपड़े पहन लिए थे और शहर की ऊंची दीवारों को पीछे छोड़कर अनजान रास्तों पर चल पड़ा था। सुबह की ठंडी हवा धीरे धीरे गर्म होने लगी थी और जैसे जैसे सूरज आसमान पर बुलंद होता गया, जमीन की तपिश बढ़ने लगी। सुल्तान, जो हमेशा रेशम के साए और खस की टट्टियों की ठंडक में रहने का आदी था, उसके लिए धूप की यह शिद्दत किसी अजाब से कम नहीं थी। उसके पांव में मामूली जूतियां थीं जो कंकरों और पत्थरों की चुभन को रोकने में नाकाम साबित हो रही थी, मगर उसने रुकने का नाम न लिया और चलता रहा, यहां तक कि वह अपनी सल्तनत के सरसब्ज इलाकों से निकलकर एक वीरान और बंजर इलाके में दाखिल हो गया। दोपहर होते होते उसे शदीद प्यास महसूस होने लगी, हल्का खुश्क हो गया और होंठों पर पपड़ियां जमने लगीं। उसे बार बार उस फकीर की बात याद आ रही थी कि सल्तनत की कीमत एक प्याला पानी है। आज पहली बार उसे पानी की तलब का असली मतलब समझ आ रहा था, क्योंकि महल में तो मांगने से पहले ही शरबत और ठंडा पानी पेश कर दिया जाता था। चलते चलते उसे दूर एक खजूर का अकेला पेड़ नजर आया, जिसके नीचे एक छोटा सा झोंपड़ा बना हुआ था और वहां एक बूढ़ा किसान जमीन खोदने में मसरूफ था। सुल्तान लड़खड़ाते कदमों से वहां पहुंचा और सूखी हुई आवाज में बोला, ऐ खुदा के बंदे, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? मुसाफिर हूं और प्यास से हाल बुरा है। उस बूढ़े किसान ने सर उठाकर देखा। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और हाथों में मेहनत के निशान। उसने फौरन अपना काम रोका और एक मिट्टी का घड़ा उठा लाया। उसने एक टूटे हुए मिट्टी के प्याले में पानी उंडेला और सुल्तान की तरफ बढ़ा दिया। पानी गंदा और गर्म था, उसमें मिट्टी की महक थी, जो शायद आम हालात में सुल्तान कभी छूता भी नहीं, मगर इस वक्त उसे वह गदला पानी दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत लग रहा था। सुल्तान ने एक ही सांस में वह प्याला खाली कर दिया और जब थोड़ी जान में जान आई तो उसने किसान से पूछा, बड़े मियां, इस वीरान बियाबान में तुम अकेले कैसे गुजारा करते हो? यहां न साया है, न ठंडा पानी और न ही कोई राहत का सामान। क्या तुम्हारी जिंदगी अजियत नहीं? किसान ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, मुसाफिर बाबू, अजियत और राहत तो दिल की कैफियत का नाम है। मैं यहां खुश हूं क्योंकि मेरा मालिक मुझे जो देता है मैं उस पर राजी हूं। ये जो पानी तुमने पिया, यह मेरे लिए शहद से कम नहीं, क्योंकि यह मेरी प्यास बुझाता है। जब इंसान को नेमत की कदर करनी आ जाए तो रूखी रोटी भी दस्तरख्वान की लज्जत बन जाती है। सुल्तान ने हैरानी से पूछा, मगर क्या तुम्हें कभी ख्वाहिश नहीं होती कि तुम्हारे पास भी बादशाह जैसी दौलत हो, नरम बिस्तर हो और नौकर चाकर हो? किसान ने हंसी को दबाते हुए कहा, बादशाह? सुना है हमारा बादशाह बहुत अमीर है, मगर बेचैन भी बहुत है। मैंने सुना है कि वह सोने के पलंग पर सोता है, मगर उसे नींद की दवा खानी पड़ती है, और मैं यहाँ कंकरों पर सोता हूँ, मगर दिन भर की मेहनत के बाद ऐसी गहरी नींद आती है कि सुबह ही आंख खुलती है। तो बताओ, अमीर कौन हुआ? वह जिसके पास सब कुछ है मगर सुकून नहीं, या वह जिसके पास कुछ नहीं मगर दिल मुतमिन है? यह बात सुल्तान के दिल पर तीर की तरह लगी। वह वहां से उठ खड़ा हुआ क्योंकि उसे शर्म महसूस होने लगी थी कि एक मामूली किसान के पास वह दौलत है जो उसके खजानों में भी नहीं, यानी सब्र और शुक्र की दौलत। सुल्तान ने अपनी जेब टटोली ताकि उसे कुछ दे सके, मगर फिर रुक गया। उसे याद आया कि वह हकीकत जानने निकला है, खैरात बांटने नहीं। उसने किसान का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गया। शाम का अंधेरा फैलने लगा था और जंगल की खौफनाक आवाजें आने लगी थीं। सुल्तान, जो हमेशा पहरेदारों के घेरे में रहता था, अब अकेला था।
और उसे अपनी जान का खौफ सताने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत सिर्फ उसके महल की चारदीवारी तक महदूद थी। यहाँ कुदरत के निज़ाम में वह भी एक आम कमजोर इंसान था। रास्ते में उसे कई बार ठोकर लगी, कपड़े फट गए और जिस्म जख्म से चूर हो गया, मगर वह चलता रहा। यहां तक कि उसे दूर कहीं आग जलती हुई नजर आई। उम्मीद की एक किरण जागी कि शायद वहां कोई बस्ती हो या कोई काफिला। जब वह करीब पहुंचा तो देखा कि कुछ लोग आग के गिर्द बैठे हैं और उनके चेहरों से वहशत टपक रही थी। ये कोई आम मुसाफिर नहीं, बल्कि डाकुओं का एक गिरोह लग रहा था जो लूट मार के बाद वहां आराम कर रहा था। सुल्तान ने छुपने की कोशिश की, मगर एक डाकू की नजर उस पर पड़ गई और उसने ललकारा, कौन है वहां? बाहर निकल, वरना तीर से छलनी कर दिए जाओगे। सुल्तान मजबूरन बाहर आया। उस वक्त उसकी हालत किसी भिखारी जैसी थी। सरदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, लगता है किस्मत खराब है तेरी, जो यहां आ निकला। हमारे पास खाना खत्म हो चुका है और तू देखने में हट्टा कट्टा लगता है। अगर तू चाहता है कि तेरी जान बख्श दी जाए तो हमारी खिदमत कर और हमारे लिए पानी और लकड़ियां जमा कर। सुल्तान जिसे हुक्म देने की आदत थी, आज उसे हुक्म मानना पड़ रहा था। उसने इनकार करने की सोची, मगर उसे एहसास हुआ कि यहां उसकी बादशाही का कोई वजूद नहीं। यहां ताकतवर वह है जिसके पास हथियार है। चुनांचे अपनी अनाह को कुचलकर वह लकड़ियां चुनने लगा। उस रात सुल्तान ने अपनी आंखों से इंसानियत का वो रूप देखा जो उसने कभी सोचा भी न था। वह सोचने लगा कि अल्लाह ने उसे बादशाह बनाया था ताकि वह इन जैसे जालिमों से कमजोरों को बचाए, मगर वह तो अपने ही जश्न में मगन रहा। उसे अपनी गफलत पर रोना आने लगा और वहां आग की रोशनी में डर और भूख के दरमियान बैठे हुए सुल्तान ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर दे, मैं वाकई भटक गया था। आज मुझे मालूम हुआ कि तेरी दी हुई इज्जत छीन ली जाए तो इंसान कितना बेबस हो जाता है। अभी वह इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक जंगल में घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी और डाकुओं में हलचल मच गई। घोड़ों की टापों की आवाज करीब आती गई और डाकुओं के सरदार ने घबराकर इधर उधर देखा। अभी वे संभलने भी न पाए थे कि अचानक मशालों की रोशनी में चमकती हुई तलवारें लिए घुड़सवारों का एक दस्ता वहां आ पहुंचा। यह कोई शाही फौज नहीं थी, बल्कि सौदागरों का एक बड़ा काफिला था जिनके अपने मुहाफिज साथ थे। डाकुओं ने जब देखा कि मुकाबला भारी है तो वे अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की गहराइयों में भाग निकले और सुल्तान को वहां अकेला छोड़ गए। सुल्तान जो डर और सहम से कांप रहा था, उसे लगा कि शायद मौत टल गई है। काफिले के सरदार ने, जो एक सफेद दाढ़ी वाला पुरवकार बुजुर्ग था और जिसका नाम ख्वाजा मीर था, घोड़े से उतरकर सुल्तान को जमीन से उठाया और पूछा, ऐ मुसाफिर, खैरियत से तो हो? लगता है इन रहजनों ने तुम्हें बहुत सताया है। सुल्तान की हालत ऐसी खस्ता थी कि कोई उसे पहचान न सका। सबने यही समझा कि यह कोई गरीब मजदूर या भटका हुआ राहगीर है। सुल्तान ने शर्मिंदगी और थकान से चूर होकर सिर्फ सर हिला दिया। ख्वाजा मीर ने अपने खादिम को इशारा किया कि इस शख्स को पानी और खाना दिया जाए और अपने साथ सवारी पर बिठा लिया जाए। काफिला दोबारा रवाना हुआ और सुल्तान, जो कल तक रेशम के गद्दों पर सफर करता था, आज एक ऊंट की सख्त पीठ पर बैठा हिचकोले खा रहा था। रास्ते में सुल्तान ने देखा कि ख्वाजा मीर इतना अमीर सौदागर होने के बावजूद अपने गुलामों और नौकरों के साथ बैठकर वही सूखी रोटी खा रहा था जो सबके हिस्से में आई थी। यहां तक कि जब पानी पीने की बारी आई तो उस बुजुर्ग ने पहले प्याला अपने अदना नौकर को दिया और खुद आखिर में पिया। यह मंजर सुल्तान के लिए नया था, क्योंकि उसने तो यही सीखा था कि सबसे पहला और बेहतरीन हिस्सा बादशाह का होता है। रहा न गया तो सुल्तान ने दबे लहजे में पूछा, ऐ बुजुर्ग, आप इस काफिले के मालिक हैं, आपके पास इतनी दौलत है, फिर आप इन मामूली नौकरों जैसा सुलूक क्यों कर रहे हैं? आपका हक तो इन सबसे ज्यादा है। ख्वाजा मीर ने मुस्कुराते हुए सुल्तान के कंधे पर हाथ रखा और एक ऐसी बात कही जिसने सुल्तान के दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने कहा, बेटा, अल्लाह ने मुझे यह दौलत और सरदारी इसलिए नहीं दी कि मैं खुद को इनसे बेहतर समझूं, बल्कि इसलिए दी है कि मैं इनकी खिदमत कर सकूं। याद रखना, सच्चा सरदार वह होता है जो अपनी रियाया का खादिम हो। अगर मैं इनकी भूख और प्यास का एहसास न करूं तो कयामत के दिन अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा? नेमत का शुक्र यह नहीं कि उसे तिजोरी में बंद कर लो, बल्कि यह है कि उसे अल्लाह के बंदों पर खर्च करो। यह सुनकर सुल्तान का सर शर्म से झुक गया।
उसे याद आया कि कैसे वह महल में दावतें उड़ा रहा था, जबकि उसके दरवाजे पर भूखे लोग खड़े थे। सफर चलता रहा और अगले दिन दोपहर के वक्त यह काफिला एक छोटी सी बस्ती में रुका ताकि कुछ देर आराम किया जा सके। यह बस्ती सुल्तान ही की सल्तनत का हिस्सा थी, मगर यहाँ का हाल देखकर सुल्तान के रोंगटे खड़े हो गए। हर तरफ वीरानी थी, घर टूटे फूटे थे और लोग हड्डियों का ढांचा लग रहे थे। बस्ती के बीच में एक चबूतरे पर कुछ सरकारी सिपाही खड़े थे जो गरीब किसानों से जबरदस्ती गल्ला और पैसे छीन रहे थे। एक बूढ़ी औरत अपने बच्चों को छुपाए रो रही थी और दुहाई दे रही थी, खुदा के लिए हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा, रहम करो। मगर सिपाही ने उसे धक्का दिया और कहा, यह शाही फरमान है, बादशाह सलामत के जश्न के खर्चे पूरे करने के लिए लगान देना ही पड़ेगा। सुल्तान भेस बदले भीड़ में खड़ा यह सब देख रहा था। उसके कानों में वे अल्फज शीशे की तरह पिघलकर उतरने लगे जब उस बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर बद्दुआ दी, ऐ अल्लाह, इस बादशाह शहरयार को गारत कर दे जिसने हमें भूखा मारा है। जैसे हम तड़प रहे हैं वह भी एक एक दाने को तरसे। अपनी ही रियाया के मुंह से अपने लिए बद्दुआ सुनकर सुल्तान के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा निकाल लिया हो। वह चीखना चाहता था कि मैं ही वह बदनसीब बादशाह हूं, मुझे रोको मत, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। मगर आवाज गले में फंसकर रह गई। ख्वाजा मीर ने उस बूढ़ी औरत की मदद के लिए अपनी जेब से दीनार निकालकर सिपाहियों को दिए और उस गरीब की जान छुड़ाई। फिर सुल्तान की तरफ मुड़कर बोले, देखा तुमने, जब हुक्मरान गाफिल हो जाता है तो उसकी सजा बेकसूर लोगों को भुगतनी पड़ती है। सुना है यहाँ का बादशाह अपने महल में मस्त है और उसे खबर ही नहीं कि उसके नाम पर उसके कारिंदे क्या जुल्म ढा रहे हैं। अल्लाह ऐसी बादशाही से महफूज रखे जहां मखलूक में खुदा राजी ना हो। सुल्तान की आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले। उसे अब समझ आ रहा था कि वह फकीर दर हकीकत क्या कहना चाहता था। उसकी नेमत यानी सल्तनत उसके लिए रहमत नहीं बल्कि जहमत बन चुकी थी, क्योंकि उसने उसका हक अदा नहीं किया था। सुल्तान वहां से भागा और बस्ती के किनारे एक सूखे हुए कुएं की मुंडेर पर बैठकर ढाड़े मारकर रोने लगा। उसका गरूर, उसका तकब्बुर सब मिट्टी में मिल चुका था। अब वह सुल्तान शहरयार नहीं था, वह सिर्फ एक गुनहगार इंसान था जो अपने किए पर पछता रहा था। तभी उसके पास वही ख्वाजा मीर आए और हैरानी से पूछा, ऐ नौजवान, तुम इतना क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारा कोई अपना इस जुल्म का शिकार हुआ है? सुल्तान ने भीगी आंखों से उन्हें देखा और दिल में फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वह अपनी गलती सुधारे, मगर कैसे? अभी वह इसी कशमकश में था कि बस्ती में शोर मच गया कि शाही फौज का एक दस्ता आ रहा है। लोग डर के मारे घरों में घुसने लगे। सुल्तान ने सोचा कि शायद उसकी तलाश में सिपाही निकले हों। अगर वह पकड़ा गया तो वापस वही जिंदगी होगी, मगर क्या वह वापस जाकर सब ठीक कर पाएगा या दरबार की साजिशों में फिर खो जाएगा? इसी सोच में गुम था कि उसने देखा कि फौज के आगे चलने वाला सिपाही ऐलान कर रहा था, सुनो सुनो, बादशाह सलामत लापता हैं। जो कोई उनका पता बताएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और अगर किसी ने उन्हें छुपा रखा है तो पूरी बस्ती जला दी जाएगी। ये सुनते ही ख्वाजा मीर ने सुल्तान का हाथ पकड़ लिया और बोले, हालात खराब लगते हैं, हमें यहां से निकलना होगा। मगर सुल्तान ने अपना हाथ छोड़ाया और एक ऐसी निगाह से ख्वाजा मीर को देखा जिसमें अब खौफ नहीं बल्कि एक नया अज़्म था। उसने धीरे से कहा, बुजुर्गवार, भागने का वक्त खत्म हो गया है, अब हिसाब देने का वक्त है। सुल्तान शहरयार ने ख्वाजा मीर का हाथ छोड़कर भीड़ को चीरते हुए आगे कदम बढ़ाया। उसके चेहरे पर अब वह बेचारापन नहीं था जो पिछले कुछ दिनों से उस पर तारी था, बल्कि वही शाही जलाल और रोब लौट आया था जो उसके खून में शामिल था। सिपाही जो उस बूढ़ी औरत को धक्के दे रहा था और गालियां बक रहा था, उसने जब एक मामूली दिखने वाले शख्स को अपनी तरफ आते देखा तो गुस्से से ललकारा, ऐ फकीर, पीछे हट जा, वरना आज तेरी खाल भी उधेड़ दी जाएगी। तुझे अपनी जान प्यारी नहीं क्या? मगर सुल्तान बिना डरे उसके घोड़े की लगाम पकड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में ऐसी आग थी कि वह सिपाही एक पल के लिए सहम गया। सुल्तान ने अपनी फटी हुई कमीज के अंदर से गले में लटका हुआ एक तावीज नुमा धागा खींचा जिसमें शाही मुहर जड़ी हुई अंगूठी लटक रही थी। यह वही निशानी थी जिसे सुल्तान ने सफर पर निकलते वक्त हिफाजत के लिए अपने लिबास के अंदर छुपा लिया था।
उसने वह अंगूठी ऊपर उठाई और बुलंद आवाज में कहा, गौर से देखो इस निशानी को। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह कोई और नहीं, मैं ही हूं, सुल्तान शहरयार। सूरज की रोशनी में वह हीरे और याकूत से जड़ी अंगूठी जगमगा उठी, जिसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स पर सन्नाटा छा गया। वह सिपाही जो अभी कोड़ा उठाए हुए था, उसके हाथ से कोड़ा छूटकर जमीन पर गिर गया और उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। देखते ही देखते फौजी दस्ता घुटनों के बल गिर पड़ा और शोर शराबे की जगह माफी की पुकार गूंजने लगी। हमें बख्श दीजिए आका, हम आपको पहचान न सके। सिपाही गिड़गिड़ाने लगे, मगर सुल्तान ने हाथ के इशारे से उन्हें खामोश किया और उस बूढ़ी औरत के पास गया जो हैरत और डर से थर थर कांप रही थी। सुल्तान ने उस मां के पैरों में झुककर कहा, मां, मुझे माफ कर दो। मैं वही बदनसीब बेटा हूं जिसकी वजह से तुम्हारे चूल्हे ठंडे पड़े हैं। तुम्हारी बद्दुआ ने असर दिखा दिया और आज मेरा जमीर जाग गया। वह मंजर देखने लायक था कि जहां एक वक्त का मगरूर बादशाह आज मिट्टी से सने कपड़ों में अपनी ही रियाया से माफी मांग रहा था। ख्वाजा मीर जो यह सब देख रहे थे, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वह नौजवान जिसे वे मामूली मजदूर समझकर लाए थे, वही इस मुल्क का वारिस है। वे घबराकर पीछे हटने लगे तो सुल्तान ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, ऐ बुजुर्ग, आप घबराइए मत। आप मेरे वही उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे इंसानियत का सबक सिखाया है, जो मुझे बड़े बड़े उस्ताद भी ना सिखा सके। सुल्तान ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि बस्ती के तमाम लोगों में शाही खजाने से इतना गल्ला और सोना बांट दिया जाए कि अगले कई सालों तक कोई भूखा न रहे, और उन जालिम अमीर और कबीर अफसरों को गिरफ्तार कर लिया जाए जिन्होंने जबरदस्ती लगान वसूल किया था। इसके बाद सुल्तान ने शाही घोड़े पर सवार होने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं पैदल ही वापस जाऊंगा ताकि मुझे याद रहे कि जमीन की सख्ती कैसी होती है। मगर वजीरों और सिपाहियों के शदीद इसरार पर वह घोड़े पर सवार हुआ, लेकिन शाही बग्घी में नहीं बैठा। वापसी का सफर सुल्तान के लिए एक नया तजुर्बा था। अब वह उन्हीं रास्तों से गुजर रहा था जहां से वह छुपकर निकला था, मगर अब वह हर चीज को नई नजर से देख रहा था। रास्ते में जहां जहां उसने वीरानी देखी, उसने अपने वजीरों से सवाल किया, यह जमीन बंजर क्यों है? यहां नहर का पानी क्यों नहीं पहुंचा? यह लोग इतने कमजोर क्यों हैं? वजीर जो हमेशा सब अच्छा है कि रिपोर्ट देते थे, अब हकलाने लगे और उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब शाही काफिला शहरपनाह के करीब पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। शहर में अब भी जश्न की रोशनियां झिलमिला रही थीं। सुल्तान ने जब अपनी ही सल्तनत की सजावट देखी तो उसे घिन आने लगी। उसे वह रोशनियां किसी गरीब के घर लगी आग जैसी महसूस हुई। उसने उसी वक्त हुक्म दिया, इन तमाम कंदीलों और चिरागों को बुझा दिया जाए। जब तक मेरी रियाया के पेट में रोटी नहीं जाएगी, मेरे महल में रोशनी नहीं होगी। यह ऐलान पूरे शहर में आग की तरह फैल गया और लोग हैरान रह गए कि अचानक बादशाह को क्या हो गया। सुल्तान जब महल के बड़े दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे सलामी दी, मगर उनकी आंखों में भी हैरत थी कि बादशाह की हालत ऐसी क्यों है। सुल्तान सीधा दरबार खास की तरफ बढ़ा, जहां वजीर आजम और दूसरे खुशामदी दरबारी मौजूद थे। वे आपस में खुसफुसा रहे थे कि सुल्तान लापता हैं, अगर वे न मिले तो तख्त पर किसका कब्जा होगा। उनकी साजिशें अभी शुरू ही हुई थीं कि दरवाजा जोर से खुला और सुल्तान शहरयार अपने फटे पुराने लिबास, बिखरे बालों और गर्दो गुबार से अटे चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुआ। दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। वजीर आजम आगे बढ़कर मक्कारी से बोला, या सुल्तान, आप कहाँ चले गए थे? हम तो परेशानी से मर ही गए थे। देखिए, हमने आपकी तलाश में क्या क्या नहीं किया। सुल्तान ने उसकी बात काटते हुए बड़े तख्त की तरफ देखा और फिर वहां रखे हुए पानी के सुराही से एक प्याला पानी भरा। उसने वह प्याला हाथ में उठाया और सबको दिखाते हुए गरजदार आवाज में पूछा, जानते हो इस एक प्याले पानी की कीमत क्या है? दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सुल्तान ने खुद ही जवाब दिया, इस एक प्याले की कीमत मेरी आधी सल्तनत है और बाकी आधी सल्तनत उस पानी के निकलने की कीमत है। यानी हमारी पूरी हुकूमत और हमारा पूरा तकब्बुर सिर्फ प्यास और राहत के दरमियान कैद है। ये अल्फाज इतने भारी थे कि दरबार का माहौल बदल गया। सुल्तान ने प्याला वापस रख दिया और तख्त पर बैठने की बजाय उसकी सीढ़ियों पर बैठ गया और बोला, आज से निजाम बदलेगा। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है
कि मेरे नाम पर तुम लोगों ने क्या लूट मचा रखी है। खजाना शाही के दरवाजे आज से गरीबों के लिए खुलेंगे। और सुन लो वजीर आजम, मैंने उस बस्ती में तुम्हारे भेजे हुए सिपाहियों का जुल्म देखा है। अगर अगली सुबह तक हर गरीब के घर अनाज नहीं पहुंचा तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। वजीर आजम के पसीने छूट गए और वह घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगा। सुल्तान ने उसे हटाते हुए कहा, माफी मुझसे नहीं, उन लोगों से मांगो जिनका हक तुमने मारा है। उस रात महल में जश्न नहीं हुआ, न साज बजे, न नाच गाना हुआ, बल्कि सुल्तान ने रात भर जागकर पिछले कई सालों का हिसाब किताब खुद जांचा। उसे पता चला कि कितना बड़ा धोखा उसके साथ हो रहा था और उसके ऐश और आराम के लिए रियाया का खून निचोड़ा जा रहा था। सुल्तान की आंखों से नींद गायब थी। वह बार बार उस फकीर, उस किसान और उस ख्वाजा मीर को याद कर रहा था जिन्होंने उसे जिंदगी का सही रास्ता दिखाया। मगर असली इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि बुराई की जड़ें बहुत गहरी थीं और महल के अंदर ही कुछ ऐसे दुश्मन मौजूद थे जो सुल्तान के इस नए रूप से खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि अगर बादशाह दरवेश बन गया तो उनकी अय्याशियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए अंधेरे कोनों में एक नई और खतरनाक साजिश तैयार होने लगी। एक ऐसी साजिश जो सुल्तान को न सिर्फ तख्त से बल्कि जिंदगी से भी महरूम कर सकती थी। सुल्तान अभी इन अंदरूनी खतरों से बेखबर था। वह बस अपनी तौबा और इस्लाह के जज्बे में डूबा हुआ था। उसने सुबह होने से पहले ऐलान करवाया कि कल दरबार-ए-आम लगेगा, जिसमें हर छोटा बड़ा बिना किसी रोक टोक के अपनी फरियाद लेकर आ सकेगा। यह ऐलान सुनकर शहर के अमीर तबके में खलबली मच गई, जबकि गरीबों के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। लेकिन क्या सुल्तान उन ताकतवर दुश्मनों का मुकाबला कर पाएगा जो उसके अपने ही महल में सांप की तरह छुपे हुए थे? रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था और पूरा शहर सुकून की नींद सो रहा था। मगर शाही महल के पिछले हिस्से में वाक़े वजीर आजम की खुफिया हवेली में चिराग जल रहे थे और वहां खामोशी नहीं बल्कि सरगोशियां गूंज रही थीं। वहां सल्तनत के बड़े बड़े अमीर, फौज के सिपह सालार और वे तमाम ओहदेदार जमा थे जिन्होंने बरसों से गरीबों का खून चूसकर अपनी तिजोरियां भरी थीं। वजीर आजम, जिसका नाम हमीद पाशा था और जो अपनी मक्कारी में मशहूर था, उसने गुस्से से मेज पर हाथ मारा और गरज कर बोला, तुम सबने सुना, सुल्तान पागल हो गया है। अगर उसने कल सुबह खजाने का मुंह गरीबों के लिए खोल दिया और हमारा हिसाब मांग लिया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वह हमारी गर्दनें उड़ा देगा और हमारी दौलत उन फकीरों में बांट देगा। सिपह सालार ने तलवार के दस्ते पर हाथ रखते हुए कहा, तो फिर इंतजार कैसा? आज रात ही सुल्तान का काम तमाम कर देते हैं। कह देंगे कि सफर की थकान से दिल का दौरा पड़ गया। मगर हमीद पाशा ने शातिराना मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और कहा, नहीं, बेवकूफ मत बनो। अगर हमने उसे मारा तो रियाया बगावत कर देगी, क्योंकि आज शाम के ऐलान के बाद लोग सुल्तान को फरिश्ता समझने लगे हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हम ऐलान करेंगे कि सुल्तान सफर के दौरान धूप और प्यास की शिद्दत से अपना जहनी तवाजुन खो बैठे हैं। हम उन्हें बीमार करार देकर कैद खाने में डाल देंगे और हुकूमत मेरे हाथ में होगी। सबने इस शैतानी मंसूबे की तारीफ की और फैसला हुआ कि कल दरबार-ए-आम में शाही तबीब सबके सामने गवाही देगा कि सुल्तान दिमागी तौर पर बीमार हैं। उधर दूसरी तरफ सुल्तान शहरयार अपने शाही कमरे में रेशम के बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर बिछी हुई एक चटाई पर बैठा था। वह रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहा था, ऐ मेरे रब, मैं जानता हूं कि मैं गुनहगार हूं। मैं जानता हूं कि मेरे इर्द गिर्द दुश्मन हैं, मगर मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। मुझे बस इतनी मोहलत दे दे कि मैं इन मजलूमों का हक अदा कर सकूं। मेरी मदद फरमा। अभी वह दुआ मांग ही रहा था कि कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला और उसका पुराना वफादार खादिम बाबा रहीम, जो सुल्तान को बचपन से खिला रहा था, एक थैली लेकर अंदर आया। उसकी आंखों में खौफ था। उसने धीमी आवाज में कहा, हुजूर, जागते रहिए, महल की हवाओं में जर घुल चुका है। मैंने अभी वजीर के खास आदमी को तबीब के साथ खुसफुसाते सुना है। वे लोग आपको पागल करार देने वाले हैं। खुदा के लिए होशियार रहिए। सुल्तान ने बाबा रहीम के कांपते हाथ थामे और सुकून से कहा, बाबा, जिसका निगाहबान अल्लाह हो, उसे बंदों की साजिशों से डरने की जरूरत नहीं। तुम बस इतना करो कि कल सुबह दरबार में आम लोगों को आने से रोकने वाले पहरेदार हटा दिए जाएं। बाकी फैसला मेरा रब करेगा। रात गुजरी
और सुबह का सूरज एक नई जंग का पैगाम लेकर निकला। दरबार ए आम सजा, मगर आज मंजर अलग था। सुल्तान तख्त पर नहीं बैठा, बल्कि तख्त के सामने सीढ़ियों पर एक सादा कुर्सी लगाकर बैठा। दरवाजे खुलने की देर थी कि हजारों की तादाद में फटेहाल लोग, यतीम, बेवाएं और मजदूर दरबार में उमड़ आए। उनकी खुशबू किसी इत्र की नहीं बल्कि मिट्टी और पसीने की थी, जो अमीर दरबारियों को नागवार गुजर रही थी। वजीर आजम हमीद पाशा ने आगे बढ़कर सुल्तान को सलाम किया और बड़े हमदर्दाना लहजे में बोला, सुल्तान सलामत, आपके चेहरे पर अभी भी सफर की थकान है। आपने कल से कुछ खाया भी नहीं। तबीब कहता है कि आपको आराम की सख्त जरूरत है। ये रियाया की बातें तो हम बाद में भी सुन लेंगे। सुल्तान ने एक गहरी नजर वजीर पर डाली और बुलंद आवाज में कहा, मेरा आराम मेरी रियाया के सुकून में है। आज हिसाब होगा। अभी सुल्तान ने पहली अर्जी सुनने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि शाही तबीब, जिसे पहले से सिखाया गया था, घबराया हुआ आगे आया और बोला, गुस्ताखी माफ आका, मगर आपकी हालत ठीक नहीं है। धूप की वजह से आपके दिमाग पर असर हुआ है। आप जो फैसले कर रहे हैं वह होश में नहीं है। देखिए, आप तख्त छोड़कर जमीन पर बैठे हैं। यह पागलपन की अलामत है। वजीर ने फौरन हाँ में हाँ मिलाई और दरबारियों की तरफ देखकर कहा, देखा आप लोगों ने, हमारे सुल्तान की तबीयत नासाज है, इसीलिए आज का दरबार बर्खास्त किया जाता है। इन्हें आरामगाह ले जाओ। सिपाही आगे बढ़ने लगे ताकि सुल्तान को पकड़ सकें। अवाम में बेचैनी फैल, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। तभी सुल्तान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर वह जलाल था कि सिपाही वहीं जम गए। सुल्तान ने तबीब की आंखों में आंखें डालकर पूछा, अगर तख्त छोड़कर गरीबों में बैठना पागलपन है, तो फिर वे लोग क्या हैं जो इन गरीबों का हक मारकर सोने के पलंग पर सोते हैं? क्या वे अक्लमंद हैं? तबीब हकलाने लगा। सुल्तान ने फिर वजीर की तरफ रुख किया और मुस्कुराते हुए कहा, हमीद पाशा, कहते हो मैं बीमार हूं। ठीक है, अगर मैं बीमार हूं तो दवा की जरूरत मुझे है, लेकिन अगर मैं तंदुरुस्त हूं तो फिर इलाज की जरूरत इस निजाम को है। वजीर ने मक्कारी से काम लेते हुए एक सोने का प्याला उठाया जिसमें खास शरबत था और बोला, हुजूर, आपकी बातें आपकी बीमारी का सबूत हैं। पहले आप ये ठंडाई पी ली ताकि दिमाग की गर्मी दूर हो, फिर हम बात करेंगे। सुल्तान जानता था कि उस शरबत में बेहोशी या जहर मिलाया हो सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर आंख सुल्तान पर थी। सुल्तान ने वह प्याला वजीर के हाथ से लिया। वजीर के चेहरे पर जीत की चमक आई, मगर अगले ही लम्हे सुल्तान ने वह प्याला अपने होंठों से लगाने की बजाय वापस वजीर की तरफ बढ़ा दिया और कहा, वजीर मोहतरम, आप हमारे सबसे वफादार खादिम हैं। हमारे से पहले हर चीज चखना आपका फर्ज है। अगर इसमें शिफा है तो पहले आप पीजिए ताकि हमें तसल्ली हो जाए। वजीर का रंग फक्का पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। वह पीने से इनकार करने लगा। सुल्तान की आवाज गरजी, पियो इसे। अगर तुम्हारे दिल में चोर नहीं है तो पियो। दरबार में मौजूद लोग अब समझ चुके थे कि दाल में कुछ काला है। वजीर ने घबराहट में प्याला गिरा दिया। वह फर्श पर गिरते ही टूट गया और देखते ही देखते उस गिरे हुए शरबत पर मक्खियां गिरकर मरने लगी। यह मंजर देखकर अवाम में गुस्से की लहर दौड़ गई। सुल्तान ने वहां मौजूद लोगों से खिताब किया, देख लो, यह है वह जहर जो ये मुझे पिलाना चाहते थे ताकि तुम्हारा हक दबा सकें। अभी सुल्तान यह कह ही रहा था कि वजीर ने आखिरी चाल चली। उसने चिल्लाकर कहा, पकड़ो इस पागल आदमी को, यह झूठ बोल रहा है। और उसके इशारे पर छुपाए हुए हथियारबंद बाकी सिपाही निकल आए जो तलवारें लेकर सुल्तान की तरफ लग गए। सुल्तान बिल्कुल निहत्था था। उसके पास कोई हथियार नहीं था। मगर उसी वक्त एक अजीब वाकया हुआ। वे गरीब अवाम, वे कमजोर बूढ़े और मजदूर जिनके हाथों में सिर्फ लाठियां और पत्थर थे, अपने सुल्तान को बचाने के लिए फौजी सिपाहियों के आगे दीवार बनकर खड़े हो गए। एक बूढ़े ने ललकारा, खबरदार, अगर किसी ने हमारे बादशाह को हाथ भी लगाया तो हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। यह वह ताकत थी जो किसी तलवार में नहीं होती, मोहब्बत और यकीन की ताकत। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए जब उसने देखा कि जिन लोगों को वह कीड़े मकोड़े समझता था, आज वही उसकी ढाल बने खड़े थे। मगर दुश्मन ताकतवर था और उनके पास तेज धार तलवारें थीं। हालात जंग की तरफ बढ़ रहे थे और दरबार आम मैदान जंग बनने वाला था। तभी महल के मुख्य दरवाजे पर एक जबरदस्त धमाका हुआ और किसी ने जोर से नखारा बजाया। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठी। रुक जाओ गद्दारों, असली फौज अभी जिंदा है। अब मुकाबला बराबरी का नहीं बल्कि हक और बातिल का खुला मैदान था
और सुल्तान ने एक गिरी हुई तलवार उठाई। पहली बार अपनी सल्तनत के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के इंसाफ के लिए लड़ने का फैसला किया। दरबार आम जो कुछ देर पहले तक खामोश था, अब वहां लोहे से लोहा टकराने की आवाजें और अल्लाहू अकबर के नारे गूंज रहे थे। ख्वाजा मीर के पहुंचते ही जंग का पासा पलटने लगा, क्योंकि उनके साथ वे पुराने तजुर्बाकार सिपाही थे जिन्होंने सुल्तान के वालिद के दौर में जंगें लड़ी थीं और जो वजीर की बदउनवानी से तंग आकर फौज छोड़ चुके थे। मगर वजीर हमीद पाशा के पास अभी भी तादाद ज्यादा थी और वह अपने खास जेरे दस्तों के साथ तख्त के करीब घेरा बनाए खड़ा था। सुल्तान शहरयार ने जब देखा कि उसके बुजुर्ग उस्ताद ख्वाजा मीर अपनी सफेद दाढ़ी के बावजूद जवानों की तरह दुश्मन पर लपक रहे हैं, तो उसके अंदर का सोया हुआ शेर जाग उठा। वह किसी माहिर जंगजू की तरह दुश्मन की सफों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में वह मामूली तलवार थी जो उसने जमीन से उठाई थी, मगर उसका वार इतना कारी था कि बड़े बड़े जिरहपोश सिपाही भी उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। हालांकि सुल्तान ने शाही लिबास नहीं पहना था, बल्कि वही फटे हुए कपड़े थे, मगर आज उसके चेहरे पर जो नूर और जलाल था वह किसी ताज से ज्यादा चमक रहा था। जंग के दौरान एक दिलसोज मंजर देखने को मिला, जब वे गरीब किसान और मजदूर जिनके पास ढाल भी नहीं थी, अपने जिस्मों पर तलवार के वार रोककर सुल्तान को बचा रहे थे। उनका जज्बा देखकर वजीर के सिपाहियों के हौसले पस्त होने लगे। उन्हें एहसास हो गया कि वे सिर्फ एक तनख्वाह के लिए लड़ रहे हैं, जबकि सामने वाले अपनी जान की बाजी लगाकर अपने हकरा और अपने बादशाह के लिए लड़ रहे हैं। हमीद पाशा ने जब देखा कि उसकी फौज बिखर रही है और फतह उसके हाथ से निकल रही है, तो उसने बुजदिली का मुजाहिरा किया। उसने देखा कि सुल्तान उससे कुछ ही दूरी पर दुश्मनों से लड़ने में मसरूफ है और उसकी पीठ खाली है। वजीर ने अपनी झरबुझी खंजर निकाली और चोरी छुपे सुल्तान की तरफ बढ़ा। वह चाहता था कि पीछे से वार करके कस्सा खत्म कर दे। सुल्तान दुश्मन से लड़ने में इतना मगन था कि उसे पीछे से आती हुई मौत की खबर न हुई। वजीर ने छलांग लगाई और खंजर हवा में बुलंद किया। ठीक उसी वक्त बाबा रहीम, वह बूढ़ा खादिम जो शुरू से कोने में खड़ा दुआएं मांग रहा था, उसने यह देख लिया। उस कमजोर बूढ़े जिस्म में न जाने कहां से बिजली जैसी फुर्ती आ गई। वह चिल्लाया, नहीं, मेरे आका को हाथ मत लगाना। और वह सुल्तान और वजीर के दरमियान दीवार बनकर आ गया। वजीर का वह जहरीला खंजर जो सुल्तान के दिल में उतरना था, वह बाबा रहीम के सीने में पैवस्त हो गया। बाबा रहीम के मुंह से खून का फव्वारा निकला और वह सुल्तान की पीठ पर गिर पड़ा। सुल्तान ने जब मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने फौरन वजीर को एक जोरदार ठोकर मारी, जिससे वह दूर जा गिरा और बाबा रहीम को अपनी गोद में ले लिया। सुल्तान की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। बाबा, यह आपने क्या किया? मेरी जान के बदले अपनी जान क्यों दी? सुल्तान तड़प कर बोला। बाबा रहीम के चेहरे पर मौत की जर्दी थी, मगर होंठों पर मुस्कुराहट। उसने कांपते हुए हाथ से सुल्तान के आंसू पोंछे और धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं तो एक अदना गुलाम हूं, मेरी जान की क्या कीमत, मगर तुम्हें जिंदा रहना है, क्योंकि तुम अब वह बादशाह नहीं रहे जो सिर्फ हुक्म देता था। अब तुम वह बाप बन गए हो जो अपनी रियाया का दर्द समझता है। मेरी कुर्बानी रायगांव मत जाने देना, इंसाफ करना, सबसे इंसाफ करना। और इन्हीं अल्फाज के साथ उस वफादार ने सुल्तान की गोद में दम तोड़ दिया। बाबा रहीम की शहादत ने सुल्तान के अंदर ऐसी आग भर दी कि अब वह रुकने वाला नहीं था। उसने बाबा का सर आहिस्ता से जमीन पर रखा और खड़ा हो गया। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि अंगारे थे। उसने गरजदार आवाज में ललकारा, हमीद पाशा, तेरी मौत आज मेरे हाथ लिखी है। सुल्तान ने तलवार उठाई और सीधा वजीर की तरफ लपका। वजीर अभी संभलने की कोशिश कर ही रहा था कि सुल्तान उस पर कहर बनकर टूट पड़ा। दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हुआ, मगर आज सुल्तान के हर वार में हक की ताकत थी। आखिरकार सुल्तान ने एक ही झटके में वजीर की तलवार गिरा दी और उसे गर्दन से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। सुल्तान की तलवार की नोक वजीर के हलक पर थी। पूरा दरबार थम गया, सबकी सांसें रुक गईं। वजीर गिड़गिड़ाने लगा, रहम बादशाह सलामत, रहम मुझे माफ कर दें, मैं तो भटक गया था। सुल्तान ने नफरत से उसे देखा और कहा, रहम उस पर किया जाता है जो गलती करे, उस पर नहीं जो कौम का गद्दार हो। तूने मेरी रियाया का खून पिया है, आज तेरा हिसाब होगा। मगर फिर सुल्तान रुक गया। उसे ख्वाजा मीर की बात याद आई कि ताकत का सही इस्तेमाल माफी में है, बदले में नहीं। मगर यह माफी जाती दुश्मनी की हो सकती है, रियाया के मुजरिम की नहीं। सुल्तान ने हुक्म दिया, इसे गिरफ्तार कर लो।
इसे मैं अपने हाथ से नहीं मारूंगा, बल्कि कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी, ताकि दुनिया याद रखे कि अंजाम क्या होता है। वजीर और उसके साथियों को जंजीरों में जकड़ लिया गया। फतह हासिल हो चुकी थी, मगर महल का फर्श अपनों और परायों के खून से लाल था। सुल्तान ने फतह का जश्न मनाने से इनकार कर दिया। वह सीधा बाबा रहीम की मैयत के पास गया और वहां बैठकर बच्चों की तरह रोने लगा। ख्वाजा मीर ने आगे बढ़कर सुल्तान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सुल्तान रोइए मत, ये आंसू इस शहीद की तौहीन है। खुश हो जाइए कि अल्लाह ने आपको ऐसे जाननिसार लोग दिए। आज बुराई हार गई और सच्चाई जीत गई। सुल्तान ने आंसू पोंछते हुए कहा, सच्चाई तो जीत गई ख्वाजा साहब, मगर कीमत बहुत भारी अदा करनी पड़ी। आज मुझे एहसास हुआ कि तख्त पर बैठना फूलों की सेज नहीं, बल्कि कांटों का ताज है। उस शाम जब सूरज गुरूब हुआ तो महल में रोशनियां नहीं जलाई गईं, बल्कि बाबा रहीम और जंग में शहीद होने वाले दूसरे गरीबों की तदफीन की तैयारी की गई। सुल्तान ने खुद बाबा रहीम के जनाजे को कंधा दिया। यह मंजर देखकर पूरे शहर की आंखें नम थीं। पहली बार रियाया ने देखा कि उनका बादशाह उनके दुख में बराबर का शरीक है। कब्रिस्तान में मिट्टी देने के बाद सुल्तान एक ऊंची जगह खड़ा हुआ और अवाम से मुखातिब होकर बोला, मैं तुम सबको गवाह बनाकर अल्लाह से वादा करता हूं कि जब तक मेरे जिस्म में जान है, यह सल्तनत मेरी नहीं, तुम्हारी होगी। आज से कोई भूखा नहीं सोएगा, आज से कोई मजलूम नहीं रोएगा, यह मेरा अहद है। लोग सुल्तान शहरयार जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, मगर सुल्तान का दिल अभी भी भारी था। उसे पता था कि जंग खत्म हुई है, मगर जिम्मेदारी शुरू हुई है। रात गए जब सब चले गए तो सुल्तान वापस अपने सूने कमरे में आया। वहां अब भी बाबा रहीम के खून के निशान फर्श पर थे। सुल्तान वहां बैठ गया और सोचने लगा कि अल्लाह की नेमत का सही शुक्र यही है कि उस नेमत की हिफाजत के लिए अपनी सबसे कीमती चीज भी कुर्बान करनी पड़ सकती है। अभी वह इन्हीं गहरी सोचों में गुम था कि उसे महल की खिड़की से आती ठंडी हवा में एक नई ताजगी महसूस हुई, जैसे कुदरत उसे बता रही हो कि अंधेरी रात ढल चुकी है और एक नई सुबह होने वाली है। खिड़की से आने वाली ठंडी हवा ने सुल्तान शहरयार के चेहरे को छुआ और उसे एहसास दिलाया कि रात का अंधेरा छोड़ चुका है और एक नई रोशन सुबह का आगाज हो गया है। बाबा रहीम की कुर्बानी और वजीर की बगावत के बाद सुल्तान की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने सबसे पहला काम यह किया कि अपने शाही खजाने के दरवाजे खोल दिए, मगर इस बार लुटाने के लिए नहीं, बल्कि तामीर के लिए। सुल्तान ने महल के ऐश और आराम के तमाम सामान बेच दिए। सोने के बर्तन पिघलवाकर उनसे किसानों के लिए हल और औजार बनवाए गए। वे रेशमी पर्दे जो कभी महल की जीनत थे, उन्हें फाड़कर यतीम खानों में बच्चों के लिए कपड़े बनवाए गए। सुल्तान शहरयार ने ख्वाजा मीर को अपना नया वजीर आजम मुकर्रर किया और उस बूढ़े किसान को, जिसने उसे पानी पिलाया था, अपने खास सलाहकारों में शामिल किया ताकि वह उसे जमीन की हकीकत से जोड़े रखे। वक्त गुजरता गया और मौसम बदलते रहे। देखते ही देखते कई साल बीत गए और सुल्तान की जवानी ढल गई। उसके बालों में चांदी उतर आई और कमर में हल्का सा झुकाव आ गया, मगर उसकी सल्तनत अब वह पुरानी सल्तनत नहीं रही जहां लोग डरते थे। अब यह एक ऐसी खुशहाल रियासत बन चुकी थी जहां कोई भी घर भूखा नहीं सोता था, जहां दुकानों और घरों पर ताले नहीं लगाए जाते थे क्योंकि चोरी का डर खत्म हो चुका था। सुल्तान ने एक नया निजाम कायम किया था जिसे नेमत शुक्र कहता था। उसका मानना था कि अल्लाह का शुक्र सिर्फ जुबान से कहना नहीं, बल्कि उस नेमत को अल्लाह के बंदों पर खर्च करना ही असली शुक्र है। वह अक्सर किसी भेष में नहीं, बल्कि अपने असली रूप में गलियों में घूमता, लोगों के दुख दर्द सुनता और उनके साथ जमीन पर बैठकर खाना खाता। लोग उसे अब बादशाह नहीं बल्कि बाबा सुल्तान कहकर पुकारते थे। एक दिन जब सुल्तान बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसे महसूस होने लगा कि अब वापसी का बुलावा आने वाला है, तो उसने अपने बेटे शहजादा फारूक को अपने बिस्तर के पास बुलाया। शहजादा फारूक एक नेक और सालेह नौजवान था जिसने अपने बाप से ही तरबियत पाई थी। सुल्तान कमजोर आवाज में बोला, बेटा, मेरे जाने का वक्त करीब है, मगर जाने से पहले मैं तुम्हें उस खजाने की चाबी देना चाहता हूं जो मुझे उस फकीर ने दी थी। शहजादा हैरान हुआ कि कौन सा खजाना। सुल्तान ने पानी का एक मिट्टी का प्याला मंगवाया, वही टूटा हुआ प्याला जो उसने सालों पहले उस किसान से लिया था और संभाल कर रखा था। उसने वह प्याला अपने कांपते हुए हाथ में पकड़ा और बेटे से कहा, गौर से देखो इसे। दुनिया के नजदीक यह मिट्टी का टूटा हुआ बर्तन है, मगर मेरे लिए यह मेरी पूरी सल्तनत से ज्यादा कीमती है, क्योंकि इसी ने मुझे बताया था कि मेरी औकात क्या है। याद रखना बेटा, यह तख्त, यह ताज, यह हुकूमत, यह सब अल्लाह की अमानत है,
तुम इसके मालिक नहीं बल्कि सिर्फ चौकीदार हो। मालिक सिर्फ वह जात है जो ऊपर बैठी है। सुल्तान की सांसें उखड़ने लगी थीं। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस कोशिश में गुजार दी कि उस एक प्याले पानी का हक अदा कर सकूं जो अल्लाह ने मुझे दिया था। मैंने कोशिश की कि कोई प्यासा न रहे, कोई मजलूम न रहे, मगर फिर भी डरता हूं कि कहीं कोई कमी न रह गई हो। कमरे में मौजूद तमाम वजीर और खादिम रो रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और पहरेदार ने अंदर आकर कहा, हुजूर, कोई बुजुर्ग आपसे मिलने आए हैं। कहते हैं पुराने दोस्त हैं। सुल्तान ने इजाजत दी तो वही फकीर अंदर आया जो बरसों पहले जश्न वाली रात दरबार में आया था। उसके चेहरे पर आज भी वही चमक थी और उम्र का कोई असर न था। वह सुल्तान के सिरहाने आया और मुस्कुराते हुए बोला, ऐ शहरयार, खुश हो जा, तेरा सौदा पूरा हुआ। तूने उस दिन कहा था कि तू एक प्याले पानी के बदले आधी सल्तनत दे देगा, मगर तूने तो उस एक एहसास के बदले अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में दे दी। आज तेरा रब तुझसे राजी है। यह सुनकर सुल्तान के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट फैल गई जिसे बयान नहीं किया जा सकता। सालों का बोझ, डर और फिक्र सब धुल गया। उसे लगा जैसे वह कैद से रिहा हो रहा हो। सुल्तान ने आहिस्ता से कलिमा पढ़ा और अपनी आंखें मूंद ली। उसकी रूह परवास कर गई, मगर चेहरे पर वह सुकून था जो सिर्फ उन्हें नसीब होता है जो अपना फर्ज अदा करके जाते हैं। सुल्तान के इंतकाल की खबर आग की तरह फैल गई। उस दिन आसमान भी रोया और पूरी सल्तनत में चूल्हे नहीं जले। हर आंख नम थी, हर दिल उदास था, मगर सुल्तान मरा नहीं था, वह जिंदा था। मार्टिन स्कॉट अपने अच्छे कामों में, लोगों की दुआओं में और उस निजाम में जो उसने कायम किया था। उसकी कब्र पर कोई बड़ा मकबरा नहीं बनाया गया, बल्कि उसकी वसीयत के मुताबिक खुला आसमान रखा गया ताकि बारिश की बूंदें उस पर गिरती रहें और वह मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाए। आज भी सदियां गुजर जाने के बाद जब मुसाफिर उस इलाके से गुजरते हैं तो लोग उन्हें सुल्तान शहरयार का किस्सा सुनाते हैं और कहते हैं कि यह वह बादशाह था जिसने मैं को मारकर हम को जिंदा किया और जिसने अल्लाह की नेमत का हक गुरूर से नहीं बल्कि आजिज़ी से अदा किया। कहानी खत्म होती है, मगर सबका बाकी रहता है कि नेमत चाहे दौलत हो, ताकत हो या सेहत, उसका असली इजहार यही है कि उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है और असली बादशाही दिल की बादशाही है।